Good morning, everyone. You can see the PPT, everybody. Can you see the slide? Okay. लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी का आज लास्ट क्लास है जिसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे हम इन प्लेसेंटेशन, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्रूट्स। बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए जस्ट द मेन पॉइंट्स वी विल डू। तो अ क्विक रिवीजन टू दीज टॉपिक्स एंड आई होप यू अंडरस्टूड। अभी तक जितना भी हमने रिवीजन किया यू अंडरस्टूड एंड लर्न द एग्जांपल्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। वी विल स्टार्ट विथ प्लेसेंटेशन। देखो हमने यहाँ पे लीव्स पे छोड़ दी थी बात ना, लीव्स तक हमने बात की थी। तो लीव्स का मॉडिफिकेशन इज लाइक वेरी इजी। वंस मोर आई विल जस्ट we will just once start with a quick recap of the modification of leaves. ठीक है, so leaves का general function photosynthesis होता है, but how do they get modified? How do they get modified? That is important. ठीक है, so let us just start with the modification of leaves. Did you learn all the modifications? Stem ka, root ka, everything was clear to you? Differences between runner, offset, stolon and sucker are very very important. ठीक है, bulb, sucker, ये सब बहुत important है। सब एरियल modifications में there are chances of getting confused, so वो जरूर से कर लेना। ठीक है, modification of leaf, yes, फाइलोटैक्सी भी हमने कर लिया था 3 तरीके का, विनेशन भी कर लिया था, पैरेलल, and then uske subdivisions also we had done. Modification of leaves quickly we will do that. Leaves ka normal function to photosynthesis hota hai, but they also get modified to perform various functions. और उसमें when the leaf gets modified into tendrils, अब यहाँ पे important है कि कौन से part से कौन सा tendril निकल रहा है, leaf के कौन से part से tendril निकल रहा है, that is very very important. This is very important. जैसे होल लीफ टेंड्रिल अगर पूरा लीफ ही टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाए, जैसे लेथाइरिस एपाका, जैसे इसमें पूरा लीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ टेंड्रिल, सो यू हैव टू लर्न दीज एग्जांपल्स. leaflets are getting modified, जैसे upper leaflets in Pisum sativum, garden pea, they get modified into tendril. Leaf tip is only getting modified, that is gloriosa. Petiolar tendrils, petioles में से tendril, petioles are getting modified into tendril. So which part of the leaf when the petiole is getting modified into tendril? Then nepenthes, clematis, ये सारे examples. And when stipules are getting modified, ये question NEET में आ चुका है. Example of smilax. So ये बहुत important है. When the entire leaf gets modified into a tendril, when the leaflets get modified into a tendril, when the leaf tip gets modified into a tendril, the petiole gets modified into a tendril. Petiole मतलब क्या? The leaf stalk. And when the stipules आपको पता है एक outgrowth होती है in the axil of the leaves. When that gets modified into a tendril, then that is stipular tendril. आगे बढ़ते हैं. Leaf sometimes gets modified into hook for protection. जैसे बिग्नोनिया, इसको कैट नेल भी बोलते हैं. ये देखो छोटे छोटे लीफलेट्स जो है ये हुक के जैसे स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गए हैं. ये देखो, दिस इज बिगोनिया, इसको कैट स्नेल भी बोलते हैं. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, फाइलोड इज आल्सो, अभी हमने फाइलोक्लेड पढ़ा था, फाइलोक्लेड और क्लैडोड, ये किसके मॉडिफिकेशंस है? दे आर मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, whereas phyllodes is a modification of leaf. Okay, so उसमें the petiole gets modified into a flat structure instead of the lamina. तो lamina doesn't get modified. ये जो है ना, ये petiole है.
दिस इज नॉट लैमिना, द पीटियोल, द स्टॉक ऑफ द लीफ. अगर ये लीफ है तो ये पीटियोल है. द पीटियोल गेट्स मॉडिफाइड इनटू अ फ्लैट स्ट्रक्चर and not the lamina, then it is called a phyllodes. Then it is called a phyllodes. So three different terms: phyllo, clade, cladode and phyllodes. Okay, example is Australian acacia. Example is Australian acacia and Parkinsonia. मतलब सारे जो xerophytic plants है. Leaf gets modified into spines. तो ये आपको पता है, Opuntia, asparagus, ये हम already पढ़ चुके हैं. Spines are also protective in function and also they reduce the water loss due to transpiration. This is important. Leaf blade gets modified into pitcher. ये देखो, pitcher of Nepenthes, जो leaf blade है, lamina, that gets modified into a pitcher. Leaf का tip जो है, that gets modified into a lid. ठीक है, और इससे क्या होता है, insects आते हैं, यहाँ पे आके trap हो जाते हैं और lid बंद हो जाती है. So some parts of the leaf get modified into sac-like bladder parts, यानी lamina. They are useful in trapping and digesting. यहाँ देखो, lamina gets modified into a pitcher. Example is Utricularia. This is an insectivorous plant. Succulent leaves, leaves में पानी स्टोर हो जाता है, बहुत सारा पानी और म्यूसिलेट स्टोर हो जाता है. Then they are called succulent leaves. Example Bryophyllum. एलोवेरा, एलोवेरा के लीव्स कितने फ्लैशी होते हैं. वीनस फ्लाई ट्रैप, यस. यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. लीव छोटे छोटे स्केली भी हो जाते हैं, ब्राउनिश कलर्ड के हो जाते हैं जब उनको when they do not take part in photosynthesis. कलर्ड भी हो जाते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, जैसे यूफोर्बिया के लीव्स, एंड फ्लैशी भी हो जाते हैं, एडिबल हो जाते हैं in case of onion and garlic. So this is about leaves. Now we are going to do a very important part, which is the placentation, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं. ये सब जनरल बातें, ये आपको पता है, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है. प्लेसेंटेशन से पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ चुके हैं. सो आई एम गोइंग टू टीच यू प्लेसेंटेशन. ओके, सो प्लेसेंटेशन, व्हाट इज प्लेसेंटेशन? प्लेसेंटेशन का सिंपल मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा. अगर आपको पता होगा कि ओवरी के अंदर ओव्यूल है एंड ओव्यूल प्लस ओवरी से कैसे अटैच्ड है, बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा. तो हमने ये स्ट्रक्चर हमेशा जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा है ना हमने, कि ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ये है ओव्यूल. ठीक है, यहाँ ये तो सिंगल ओव्यूल है, मतलब मान लो बहुत सारे ओव्यूल्स हैं और ये ओवरी है. तो प्लेसेंटा, ये छोटे छोटे जो ओव्यूल्स अंदर दिखाए हैं, ये जो ओव्यूल्स अंदर दिखाए हैं, ये प्लेसेंटा है. सो प्लेसेंटा हेल्प्स इन कनेक्टिंग द ओव्यूल टू द ओवरी, ओव्यूल टू द ओवरी. अब किस तरीके से प्लेसेंटा प्लेस्ड एंड हाउ आर द ओव्यूल्स अरेंज्ड, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड placentation. So the arrangement of ovules on the placenta within the ovary is called placentation. Is called placentation. सबसे पहला प्लेसेंटेशन इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन. इट्स मार्जिनल प्लेसेंटेशन. और उसका सबसे कॉमन एग्जांपल इज पी. आपको पता है where the how the presentation is taking place over here. आपने पी देखा है ना, पी को खोल के देखा है, तो एक मार्जिन होते हैं. यहाँ पे देखो इस तरीके की मार्जिन है, ये पी का पॉड है, राइट, और ये सब सीड्स है. तो सीड्स यानी ओव्यूल्स. सो हाउ आर दे प्लेस्ड? मोनोकार्पेलरी, गाइनोशियम. मोनोकार्पेलरी मतलब एक ही कार्पल का बना हुआ, एंड प्लेसेंटा जो है it develops along the junction of the two margins. Imagine दो, ये P है, ये ऐसे बंद है, तो अगर आप P को खोलोगे तो haven't you seen कि ये ऐसे मार्जिन हो और दोनों साइड से इस तरीके से प्लेसेंटा निकला हुआ है. You understanding in which the placenta develops along the junction of the two margins. ये दो, अगर ये उसका जॉइंट है दोनों P का, मतलब एक P पॉड को अगर खोलोगे, दो साइड है ना उसके, तो जॉइंट है, तो इसके मार्जिन में लगा होता है, इसके मार्जिन में लगा होता है प्लेसेंटा, इसके मार्जिन में लगा होता है प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा से अटैच्ड है ओव्यूल. यस, यूनिलोक्युलर, एक ही चेंबर है, एक ही चेंबर है. सो मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम. और प्लेसेंटा कहाँ डेवलप हो रहा है? जंक्शन ऑफ द टू मार्जिन. तो मार्जिन पे है, ये मार्जिन अगर है, इस पे प्लेसेंटा है, then you have this kind of placentation as
पी, इसका एग्जाम्पल लर्न करना बहुत ईजी है, आप देख भी सकते हो, इमेजिन भी कर सकते हो कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में होता है। नेक्स्ट इज पेराइटल। अच्छा ये कैसे याद रखें कि पी से पेराइटल, पी से पेरिफेरल, मतलब यहाँ पे ओव्यूल्स देखो आप पेरिफेरी में है ना, पेरिफेरा में है, और ये क्या है, एक ही चेम्बर है, एक ही लॉक्यूल है, दिस इज यूनिलॉक्यूलर, दिस इज यूनिलॉक्यूलर, एक ही चेम्बर के पेरिफेरी में अरेंज्ड है। तो देखो पेरिफेरी में ये है प्लेसेंटा और ये सब है ओव्यूल्स, राइट। So ovary is one chambered, ovary is one chambered and parietal placentation, ठीक है, parietal placentation है इसमें, और इसके एग्जाम्पल्स है, इसके एग्जाम्पल्स है मस्टर्ड एंड आर्जमोन, इसका न्यूमोनिक है मैप, मस्टर्ड एंड आर्जमोन, और पी से पेराइटल। आप इस निमोनिक से याद रखना, इस निमोनिक से आप याद रखना। Now what is parietal placentation? जैसे parietal placentation देता है, आप याद रखना कि where is the placenta placed or where are the ovules placed on the periphery। देखो जहां पे placenta होगा उसी से attached होगा ovule। So parietal placentation means peripheral and they are attached at the periphery। दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है? तो क्रूसिफेरी फैमिली में होता है, मस्टर्ड फैमिली में होता है, इन्हीं में एक फॉल्स रेप्लम भी डेवलप होता है। ये यूनिलॉक्यूलर हैं, लेकिन इस रेप्लम की वजह से ऐसा लगता है कि ये बाइलॉक्यूलर, पर होते नहीं, दिस इज अ फॉल्स सेप्टम। और ये रहा प्लेसेंटा, तो देखो पेरिफेरी में ही है। इसका न्यूमोनिक है मैप, मस्टर्ड आर्जमोन। नेक्स्ट है एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो जनरली यहाँ पे देखो मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन है, मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन है, और प्लेसेंटा सेंटर में है, एक एक्सेस बना रहा है, और उसके ऊपर लगे हुए हैं उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, उसके ऊपर लगे हुए हैं ओव्यूल्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखो, द ओवरी इज पार्टीशन्ड इनटू टू और मोर चेंबर्स, द ओवरी इज पार्टीशन्ड इनटू टू और मोर चेंबर्स, प्लेसेंटा occurs in the central region, placenta occurs in the central region, this is called exile placentation, this is called exile placentation। so exile placentation के examples लिखो, parietal के examples क्या थे, what were the examples of parietal? इसके एग्जाम्पल्स है, एक्साइल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल्स है चाइना रोज, अनियन, लेमन, सारे सिट्रस, ऑरेंज, टोमेटो, ठीक है। इसका न्यूमोनिक लिखो टीएलसी, टीएलसी, इसका न्यूमोनिक लिखो टी फॉर टोमेटो, एल फॉर लेमन एंड सी फॉर चाइना रोज। टीएलसी कैसे याद रखोगे, टोटल लंग कैपेसिटी, ऐसा भी कर सकते हो आप। टीएलसी याद रखना एक्साइल प्रेजेंटेशन में, टोमेटो, लेमन, चाइना रोज। डन। नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, देखो फ्री है, प्लेसेंटा फ्री है, सेंट्रल है, सेंटर पे है, फ्री है, सेंटर में है, which is not connected with the ovary wall। प्लेसेंटा की कनेक्शन ओवरी वॉल से है नहीं है, इट्स नॉट कनेक्टेड विद द ओवरी वॉल, ये रही ओवरी वॉल एंड हियर इज द प्लेसेंटा। so placenta is not connected with the ovary wall by any septum, ठीक है। इसका न्यूमोनिक है डीपी, आप व्हाट्सएप पे डीपी बनाते हैं ना, उसी से याद रखना आप, डायंथस प्रिमरोज, डी से डायंथस,
P से primrose. Okay. All right, everybody. Next is basal placentation. Basal placentation. Basal placentation तो बहुत ही easy है. Unilocular ovary है और placenta develops at the base of the ovary. Placenta develops at the base of the ovary और एक ही single ovule है, simple सा है, base पे develop होता है. इसका न्यूमोनिक है sun blessed Mary. Sun blessed Mary. S से याद रखना sunflower. M से याद रखना marigold. And this is basal placentation. Superficial नहीं आता है तो these are the important examples. एक बार फिर से न्यूमोनिक बता देती हूँ. मार्जिनल के लिए कोई न्यूमोनिक नहीं लगेगा. P is the only example. Common name of DC. P is the only example. ये सारे फ्लावर्स हैं, इवनिंग प्राइमरोज और उस कैटेगरी के जितने फ्लावर्स हैं ना, दे विल कम इन दिस कैटेगरी, डायंथस एंड ऑल दैट. नाउ एक बार फिर से आप यू जस्ट सी द एग्जांपल्स. मार्जिनल का एग्जांपल क्या हुआ? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मार्जिनल? सबकी एग्जांपल लिख के भेजो. मार्जिनल, पेराइटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, बेसल, write fast and send it to me. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. मार्जिनल का P होगा, PEA. डायंथस को, अच्छा आपने क्या पूछा? डायंथस. डायंथस का नॉम, आपने कार्नेशंस का नाम सुना है? कार्नेशंस, वो फ्लावर्स जो हम लोग एक दूसरे को प्रेजेंट करते हैं, कार्नेशंस. दोज विल कम अंडर डायंथस. वो इवनिंग प्राइमरोज और वो सब जो है. यस, करेक्ट, वेरी गुड. सो प्लेसेंटेशन इज ओवर. ठीक है, प्लेसेंटेशन इज ओवर. नाउ वी विल मूव ओवर टू इनफ्लोरेसेंस. वी विल मूव ओवर टू इनफ्लोरेसेंस. चलो जल्दी जल्दी फ्रूट भी करना है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आपका सपोर्ट चाहिए मेरे को, फ्रूट जल्दी करना है. करेक्ट, गुड. इसमें से क्वेश्चन आता है, इसलिए वी हैव टेकन दिस टॉपिक. अब आ जाते हैं इनफ्लोरेसेंस में आपको इस सिलेबस में सिर्फ रेसिमोस एंड साइमोस इनफ्लोरेसेंस है. इन योर सिलेबस यू जस्ट हैव रेसिमोस एंड साइमोस इनफ्लोरेसेंस. बाकी जो स्पेशल टाइप की इनफ्लोरेसेंस है, दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. बट यस, एग्जाम्पल आप कर सकते हो. तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स. इनफ्लोरेसेंस का सिंपल मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लावर एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस. मतलब जब आप एक फ्लावर की बात नहीं कर रहे हो, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स की बात कर रहे हो. एक फ्लावर के स्टॉक को क्या बोलते हैं? पेडिसल. और इनफ्लोरेसेंस के स्टॉक को क्या बोलते हैं? पिडंकल. इनफ्लोरेसेंस के स्टॉक को क्या बोलते हैं? पिडंकल. ठीक है, सो एक फ्लावर तो पेडिसल, पूरा इनफ्लोरेसेंस तो पिडंकल. देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस. पहला वाला होता है रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस और दूसरा होता है साइमोस इनफ्लोरेसेंस. रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है? जो मेन एक्सिस होती है ना, जैसे देखो ये सब रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है. तो जो मेन एक्सिस होती है, इट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड इट इज नॉट टर्मिनेटेड बाय अ बड.
तो मेन एक्सिस जो है इसकी इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ हो रही है, देख रहे हो कहीं पे भी मेन एक्सिस में बड लगाया हमने नहीं लगाया है. सो मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, इट इज नॉट टर्मिनेटेड बाय अ बड. तो इसका मतलब कुछ खास बातें हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की. सबसे पहला है कि मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो. मेन एक्सिस continues to grow. Not terminated by a bud. दूसरा है flowers are born in an acropetal manner. Acropetal manner का मतलब होता है youngest at the apex. Youngest at apex, acropetal. और ये कैसे खुलते हैं? ये फ्लावर्स खुलते हैं सेंट्रीपिटल मैनर में. सेंट्रीपिटल मैनर में मतलब पहले बेस वाला खुलेगा ना, बिकॉज यंग वाला तो एपेक्स पे है. करेक्ट, यंग वाला तो एपेक्स पे है, राइट. अब ये तीनों इंफॉर्मेशन इज कांस्टेंट फॉर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड लेट अस डू द डिफरेंट टाइप्स. रेसीम, panicle, spike, catkins, faddix, corim, umbel, and capitulum. These are important examples of racemose inflorescence. तो racemose inflorescence में ये तीन बातें याद रखना. अब चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है रसीम. अब देखो यहाँ पे तो मेन जो एक्सेस है ना, इसको हम बोलेंगे पेडंकल. तो इसमें जो मेन एक्सेस है वो ब्रांच नहीं है. और फ्लावर्स कैसे हैं, फ्लावर्स कैसे अरेंज्ड है, देखो इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन. जो ऊपर है सबसे यंग है, यंगेस्ट एट द एपेक्स. सो फर्स्ट सबसे मेच्योर है, उसके बाद ये. तो हाउ इज द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस अरेंज्ड? रसीम कैसा है? When peduncle is elongated and the flowers are pedicellate. फ्लावर्स में पेडिसल भी होते हैं. ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है. अच्छा, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के लिए फॉलो होंगे. तो इसमें देखो ऑल्टरनेट अरेंज्ड है, यंगेस्ट एट द एपेक्स है, एंड फ्लावर्स आर पेडिसिलेट. नेक्स्ट है, इसी का दूसरा वर्जन है पैनिकल. जिसमें देखो पैनिकल और रसीम के बीच में क्या डिफरेंस है? सिंपल डिफरेंस है. दिस इज ब्रांच्ड, मतलब इसमें ये मेन एक्सिस है, उसके बाद एक और डिवीजन है, एक और ब्रांचिंग है, और उसके बाद ब्रांच पे फ्लावर्स हैं. तो देखो ये मेन पेडंकल है, फिर एक ये ब्रांचिंग हुई, उसके बाद है फ्लावर्स, राइट. सो एग्जांपल्स लिखो, रसीम का एग्जांपल्स लिखो. क्रूसिफेरी फैमिली, रेडिश इज द एग्जांपल. नेक्स्ट इज पैनिकल आपको पता है, पैनिकल अभी बताया कि क्या होता है. पैनिकल इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड रेसीम. ये सब रेसीम के ही मॉडिफिकेशंस हैं. अब देखो स्पाइक में देखो सिमिलर एज रेसीम बट दे आर सेसाइल. मतलब इनके फ्लावर्स के पास स्टॉक नहीं है, पर अरेंजमेंट वही है. सबसे मैच्योर वाला सबसे नीचे है, यंगेस्ट इज एट द एपेक्स. एग्जांपल ऑफ स्पाइक इज ऑल द ग्रामिनी फैमिली. जितने भी जो आपके जो भी राइस, व्हीट, मेज, ये सब है ना, वो सब स्पाइक है, ग्रामिनी फैमिली. नेक्स्ट इज कैटकिन. कैटकिन की अरेंजमेंट ध्यान से देखो. क्या डिफरेंस लग रहा है आपको कैटकिन और रसीम में? इसका पेडंकल ऐसे पेंडुलस है, ऐसे जैसे लटका हुआ है, देखो स्टॉक से. राइट द एग्जांपल्स फास्ट. कैटकिन में देखो कैसा है. इसका भी पेडंकल लॉन्ग थिन होता है, लेकिन पेंडुलस होता है. देखो कैसे ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे लटका रहता है. कैटकिन, मलबरी सुना है ना,
मलबरी, मलबरी, शहतूत, मलबरी। ओके, नेक्स्ट इज कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस के बाद स्फैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस। देखो स्फैडिक्स में देखो क्या होता है। स्फैडिक्स में देयर इज एक एवरीथिंग इज सेम, मतलब इसमें भी वो ससाइल फ्लावर्स होता है, लेकिन इसमें एडिशनली एक ऐसा ब्रैक्ट आ जाता है, इसको बोलते हैं स्फेद, इसको बोलते हैं स्फेद। ठीक है, सो व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ स्फैडिक्स? बनाना। स्फैडिक्स का एग्जांपल क्या होगा? बनाना, मेज, पाम। तो एडिशनली उसमें क्या होगा, एक अलग से ब्रैक्ट होगा, एक अलग से ब्रैक्ट होगा, कोलोकेशिया। मेज, पाम। पैनिकल का एग्जांपल युक्का। युक्का पता है ना आपको? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है युक्का। We have studied this in ecology. Yucca. Okay? ठीक है, तो एक बार सबके एग्जांपल्स एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ये सारे characteristics, main axis is not terminated into a flight, grows indefinitely, there is acropetal succession, youngest at the apex, then there is centripetal arrangement, that means the basal flowers which are towards the down, they will open first and the apex flowers will open later. ठीक है, एग्जाम्पल और टाइप्स है। रेसीम में peduncle elongated है, and how are the flowers born in an alternate manner? Spike में panicle is a branched raceme, spike में sessile flowers, catkin में pendulous peduncle और उसमें spathe। क्लियर? एग्जाम्पल्स है radish, yucca, ग्रामिनी में राइस कर सकते हो उसको, राइस, wheat। कैटकिन में मलबरी, बीटल। नेक्स्ट इज कॉरिम। कॉरिम में देखो, ध्यान से देखो, ये सारे रूल्स तो फॉलो होंगे। इसमें एक मेन एक्सिस है जो कोई पेडंकल है, और उसके बाद बाकी के जो ब्रांचेस निकल रहे हैं ना, नीचे वाले ब्रांचेस दे आर लॉन्ग और ऊपर वाले छोटे हैं और एक ही लेवल पे आ रहे हैं फ्लावर्स। लेकिन यंगेस्ट वाला एपेक्स पे है, मतलब फोर्थ वाला सबसे यंग होगा। तो सब के सब नीचे वाले जो उसके पेडिसल है फ्लावर्स के, दे आर लॉन्गर एंड ऊपर वाले छोटे हैं, बट दिस कम टू लाई एट द सेम लेवल। एग्जांपल है कैंडिटेफ्ट, एबेरिस, इमारा। अंबिल में देखो सारे ब्रांचेस, ये पेडंकल है, सारे ब्रांचेस एक ही पॉइंट से निकलते हैं, ये भी एक लेवल में आ रहा है, लेकिन ब्रांचेस आर ऑफ द सेम लेंथ। ये जो पेडिसल्स है दे आर ऑफ द सेम लेंथ, इसमें दे आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। अंबिल एग्जांपल है सेंटेला, ब्राह्मणी बोलते हैं ना, सेंटेला प्लांट। कंपाउंड अंबिल कुछ नहीं होता है, अंबल जब कलेक्शन ऑफ अंबिल होगा तो कंपाउंड अंबिल है भी नहीं आपके सिलेबस में। कॉलीफ्लावर कर सकते हो आप, कंपाउंड फॉरेन कॉलीफ्लावर हो गया। यहाँ एग्जांपल लिखो कंपाउंड कॉरिम। कंपाउंड कॉरिम, द एग्जांपल इज कॉलीफ्लावर। एंड कंपाउंड अंबिल, द एग्जांपल इज कोरिएंडर। नेक्स्ट जो सबसे खास इन्फ्लोरेसेंस है वो है कैपिटलम। कैपिटलम में क्या होता है, ये जो पेडंकल है ना, ये पूरा ऐसे
फ्लैटेंड हो जाता है, मतलब या तो इस तरीके से होगा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, किसी भी तरीके से होता है। और फ्लावर्स जो है दे आर अरेंज्ड ऑन द फ्लैटेंड पेडंकल। जैसे सनफ्लावर के केस में पढ़ा है ना, बीच में क्या होता है, सनफ्लावर देखने में एक फ्लावर लगता है ना, बट इट इज नॉट अ सिंगल फ्लावर, इट इज एन इनफ्लोरेसेंस। तो बीच में उसके डिस्क फ्लोरेट होते हैं और चारों तरफ ऐसे रे फ्लोरेट्स होते हैं। तो जो रे फ्लोरेट्स होते हैं ना वो तो फर्टाइल नहीं होते हैं, जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। रे फ्लोरेट का काम रहता है सिर्फ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का, और डिस्क फ्लोरेट में एक्चुअली पॉलिनेशन होता है। सो हेड और कैपिटलम में एग्जांपल विल बी सनफ्लावर, हेलियांथस सैनस, मैरीगोल्ड, सारे एस्टेरियसी फैमिली। डन। सारे एग्जांपल समझ में आ गए? सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटलम से देते हैं। कैपिटलम से आपसे पूछते हैं ना, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट कहाँ पे पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन होता है डिस्क फ्लोरेट में, बिकॉज इसमें होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इसमें होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इसमें क्या होता है ना, स्टिग्मा ऐसे कॉइल हो जाएगा, स्टिग्मा इज गोइंग टू कॉइल। अगर अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ बाहर से तो स्टिग्मा अपने आप कॉइल करके चिपक जाएगा, एंथर लेके ले लेगा। कॉरिम का एग्जाम्पल, कॉरिम का एग्जाम्पल है कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट, एबेरिस एमारा। एंड कंपाउंड कॉरिम का एग्जांपल है, कॉरिम का कलेक्शन होगा, देन द एग्जांपल इज कॉलीफ्लावर। कंपाउंड अम्बिल का एग्जांपल होगा, अम्बिल एग्जांपल इज सिंपल, अम्बिल का एग्जांपल होगा सेंटेला और ब्राह्मणी। कंपाउंड एम्बिल का एग्जांपल होगा कोरिएंडर, धनिया। ठीक है, रिटन ऑल। ये सफेद आ चुका है एक बार। नेक्स्ट इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की कुछ खास बातें आपको पता है। मेन एक्सिस टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर, तो इनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, शॉर्ट होंगे क्योंकि मेन एक्सिस अब नहीं ग्रो करेगा, बहुत लंबे नहीं होंगे ये। सो मेन एक्सिस इज टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर। फ्लावर की अरेंजमेंट क्या होगी, बेसी पेटल, youngest at the base, और सबसे पहले कौन खुलेगा, किस तरीके का अरेंजमेंट है, सेंट्रीफ्यूगल। मतलब बेस वाले पहले, यंगेस्ट एट द बेस है तो एपेक्स वाले पहले खुलेंगे ना, जो मेच्योर है वो पहले खुलेगा, राइट। तो देखो सबके नीचे वाले फ्लावर सबसे यंग है। So what are the different types of cymose inflorescence? So in the cymose inflorescence, the peduncle terminates into a flower. ये देखो, ये मेन एक्सिस है ना, ये देखो, ये फ्लावर है, यहाँ पे ये फ्लावर है, मेन एक्सिस में ही फ्लावर है, तो इसकी ग्रोथ लिमिटेड होगी। मेन एक्सिस peduncle is terminated into a flower. Youngest flower, older flowers are present at the tip and youngest are present at the base. Youngest flowers are present at the base and older flowers are present at the tip. Older flower सबसे लास्ट में ये निकला है 5, वो टिप पे है। सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट है, सबसे पहले कौन खुलेगा, जो मेच्योर होता है वो सबसे पहले खुलेगा। मेच्योर कहाँ पे है, टिप पे है, वो सबसे पहले खुलेगा, राइट। इसके अरेंजमेंट के बेसिस पे अब देखो क्या होता है कि जैसे ये एक ब्रांच है, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। यूनिपेरस, ये यूनिपेरस के टाइप्स हैं। यूनिपेरस के 2 टाइप्स हैं, स्कॉर्पॉइड एंड हेलिकॉइड। अब देखो ध्यान से,
अब इसमें मेन एक्सिस है, ये पहला फ्लावर है, मेन एक्सिस ये पेडंकल है, इस पे फ्लावर आ गया, तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब क्या होगा, यहाँ तो अब कुछ नहीं आएगा, अब एक लैटरल ब्रांच आएगी इधर, इस पे भी फ्लावर आ गया, अब इस यहाँ अब कुछ नहीं हो सकता, अब एक और ब्रांच आएगी। अब ब्रांच किस फैशन में आती है, जिगजैग फैशन में आती है या एक ही डायरेक्शन में आती है? अगर वो जिगजैग फैशन में आ रही है, मतलब ये मेन एक्सिस थी, यहाँ फ्लावर आया, देन यू हैव अनदर लैटरल ब्रांच, ये एक लैटरल ब्रांच आई, इस पे फ्लावर आ गया, फिर एक और लैटरल ब्रांच, अब ये इस डायरेक्शन में नहीं है, उल्टे डायरेक्शन में एक और फ्लावर आ गया, फिर एक और ब्रांच उल्टे डायरेक्शन में, मतलब ये एक इस पे फ्लावर आया, ये लैटरल ब्रांच आई, अब इस तरफ ने एक ही डायरेक्शन में नहीं, इधर आ गया, अब इधर आया तो इधर आया, इधर आया तो इधर आया, ये जिगजैग फैशन में आएगा, इसको बोलेंगे स्कॉर्पॉइड। एग्जाम्पल स्कॉर्पॉइड का लिखो, बिग्नोनिया, हेलिकॉइड में देखो वही सेम है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में, ये दिस इज द मेन पेडंकल, फिर ये लैटरल ब्रांच आई, इस पे फ्लावर आया, अब ये भी ये इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो स्कॉर्पॉइड हो जाएगा, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, so like they are in the same direction, the lateral branches come out in the same direction, but सब के सब will be terminated by a flower। हेलिकॉइड का एग्जाम्पल क्या होगा, एट्रोपा, धतुरा, ये हो गया यूनिपेरस। सो यूनिपेरस में आप देख रहे हो ना, एक ही पेडंकल है, फिर उसमें लैटरल ब्रांचेस आ रहे हैं। अब बाईपेरस में देखो, एक पेडंकल टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर, अब उसके दो लैटरल ब्रांचेस आए, अब उन लैटरल ब्रांचेस में फिर दो लैटरल ब्रांचेस आए, सबके सब एवरी नाउ सी टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर है, so ये सबके लिए होगा फॉर ऑल द साइमस इन्फ्लोरेसेंस। तो ये पहला पिडंकल और ये टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर, फिर बाईपेरस है तो दो लैटरल ब्रांच निकले, वो भी टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर, सेकंड देखो, फिर उसके भी दो निकले टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर, दिस इज बाईपेरस, दो लैटरल ब्रांचेस, टू लैटरल ब्रांचेस, सो बाईपेरस काइंड, biparous cyme is biparous kind of cymos inflorescence, biparous cymos inflorescence or dichasial, example of biparous is jasmine, bougainvillea, next is multiparous, next is multiparous, next is multiparous, मल्टीपेरस में देखो ये एक स्टॉक टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर, फिर कितने लैटरल ब्रांचेस निकले, एक दो तीन चार, ये सेकेंड, तो मेनी लैटरल ब्रांचेस, उसके बाद उसके भी चार लैटरल ब्रांचेस, तो एक बार ये टर्मिनेट हुआ फ्लावर से, इसके चार लैटरल ब्रांचेस निकले, फिर इसके भी चार लैटरल ब्रांचेस निकले,
ठीक है, सो दिस इज मल्टीपेरस। इसके एग्जाम्पल है नेरियम कैलोट्रोपिस। नेरियम एंड कैलोट्रोपिस। ठीक है, सो डन। डन एवरीवन। एग्जाम्पल्स रिपीट करूं। बिगोनिया स्कॉर्पॉइड में, हेलिकॉइड में एट्रोपा धतुरा, बाइपेरस में बोगनविलिया जैस्मीन, मल्टीपेरस में नेरियम एंड कैलोट्रोपिस। अब चलो फ्रूट। लेट अस स्टार्ट द फ्रूट। अब फ्रूट के बारे में आपको पता है, फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी। इट कंसिस्ट ऑफ द फ्रूट वॉल, जिसको पेरिकाप बोलते हैं। पेरिकाप के पार्ट से एपिकाप, मीजोकाप, एंडोकाप। एंड द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट होता है which develops from the ovary. False, which develops from, which does not develop from the ovary. और उसमें फ्लोरल पार्ट्स आर फ्यूज्ड विद द पेरिकाप। एग्जांपल एप्पल, पेयर। पार्थेनोकार्प्स ऐसे फ्रूट्स दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये तो एक जनरल क्लासिफिकेशन है ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। मेन आपके जो सिलेबस में वो ये है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। यस, वो दोज फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। चलो, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में जो आपको पढ़ना है, सिंपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट्स नाम सिंपल फ्रूट है, लेकिन बहुत सिंपल नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, नाम है। देखो, सिंपल फ्रूट एक ऐसा फ्रूट होता है दैट डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर। मतलब एक सिंगल फ्लावर है, उसकी सिंगल ओवरी है, दैट डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। हो गया सिंपल। तो सिंगल ओवरी से डेवलप हो गया। एग्रीगेट डेवलप करता है, एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर इज वन, लेकिन कार्पल्स किस तरीके के कार्पल है? एपोकार्पस, मल्टी कार्पुलरी, गाइनोशियम। मतलब फ्री कार्पल्स। एंड ईच कार्पल डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। और वो एक साथ आते हैं, उनको फ्रूटलेट्स बोलते हैं, वो एक साथ ऐसे मिल जाते हैं। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। सिंपल में एक ही ओवरी रहती है, एक ही फ्लावर रहता है, इसमें भी एक ही फ्लावर रहता है, बट मल्टी कार्पुलरी गाइनोशियम रहता है। and every carpel is free and each carpel develops into a fruit. Composite or multiple fruit? Composite or multiple fruit?
डेवलप्स फ्रॉम एंटायर इन्फ्लोरेसेंस, तो इनको हम फॉल्स फ्रूट ही बोलेंगे, ठीक है। सो सिंपल सिंगल ओवरी से डेवलप कर रहा है। एग्रीगेट, दिस इज मोनोकार्पुलरी ओवरी। मल्टीकार्पुलरी ओवरी, एक ही फ्लावर है बट मल्टीकार्पुलरी, और सब के सब जो है वो दे आर फ्री, द कार्पल्स आर फ्री। और इसमें क्या होता है, दे डेवलप फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस, दे डेवलप फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस। तो ये है थ्री डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फ्रूट्स, थ्री डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। अब सिंपल फ्रूट के अंदर आ जाओ। सिंपल फ्रूट में सिंगल ओवरी है, ज्यादातर मोनोकार्पुलरी होगी, बहुत रैंडमली अगर अगर पॉलीकार्पुलरी हुई भी तो सिन कार्पस कंडीशन होगा, फ्री नहीं होता है इसमें। इसमें एपोकार्पस मतलब फ्री रहते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? सिंपल फ्रूट के अंदर ड्राई फ्रूट, ड्राई सिंपल फ्रूट एंड फ्लेशी। एग्रीगेट के अंदर ये सब देखो, इटेरियो मतलब कलेक्शन, इटेरियो ऑफ एकीन्स, ग्रुप्स, फॉलिकल्स, बेरीज, समारा, ये सब इसी के अंदर है। आई एम गोइंग टू टेल यू। कॉम्पोजिट के अंदर सोरोसिस, कौन से इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप कर रहा है, एंड साइकोनस। अभी आपको बताया था सिंपल फ्रूट ड्राई भी हो सकता है, सक्यूलेंट भी हो सकता है। ड्राई फ्रूट जो होता है उसके तीन क्लासिफिकेशन है, डेहिसेंट, शिजोकार्पिक एंड इंडेहिसेंट। डेहिसेंट, शिजोकार्पिक एंड इंडेहिसेंट, ठीक है। तो सबसे पहले डेहिसेंट वाले की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स की। सिंपल फ्रूट्स आर डिवाइडेड इनटू ड्राई फ्रूट्स एंड फ्लैशी फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट इसलिए बोलते हैं बिकॉज उनका पेरिकार्प ड्राई होता है। फ्लैशी फ्रूट इसलिए बोलेंगे बिकॉज उनका पेरिकार्प फ्लैशी होता है। दोनों की दोनों, बोथ ऑफ देम आर अंडर सिंपल फ्रूट्स ओनली। अब ड्राई और उनके क्लासिफिकेशंस है डेहिसेंट, शिजोकार्पिक एंड इंडेसेंट। तो डेहिसेंट का मतलब होता है आफ्टर मैच्योरिंग पेरिकार्प स्प्लिट्स एंड सीड्स आर एक्सपोज्ड, मतलब वो फट जाता है फ्रूट और सीड्स एक्सपोज हो जाते हैं अपने आप से बेस्ड ऑन किस तरीके से वो एक्सपोज हो रहे हैं, मतलब किस तरीके से वो रप्चर हो रहे हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स। जैसे देखो, सबसे पहला है लेग्यूम और पॉड। लेग्यूम और पॉड, तो इसमें लेग्यूम और पॉड डेवलप्स, इट डेवलप्स फ्रॉम अ मोनोकार्पुलरी यूनिलोक्युलर सुपीरियर ओवरी, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है इसमें। एंड ऑन मैच्योरिटी द फ्रूट डेहिसेस अलोंग बोथ द सूचर्स, दोनों सूचर से वो डेहिस हो जाता है, दोनों तरफ से आप खोल सकते हो उसको ऐसे। और इसका पेरिकार्प देखो ड्राई होता है, सो दिस इज अ ड्राई फ्रूट। नेक्स्ट इज फॉलिकल। देखो फॉलिकल लेग्यूम को रिजेंबल करता है कि वो भी मोनोकार्पुलरी यूनिलोक्युलर, मोनोकार्पुलरी यूनिलोक्युलर होता है सुपीरियर ओवरी, लेकिन इट्स ऑन मैच्योरिटी इट स्प्लिट्स along only one suture. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फॉलिकल का एग्जाम्पल क्या होगा, मदार, कैलोट्रोपिस, पेरीविंकल, ठीक है। तो ये कितने सूचर से ब्रेक होगा, एक ही सूचर से ब्रेक होगा, एक ही जगह से ब्रेक होगा वो, ये दोनों साइड से। सो अलोंग टू सूचर्स, अलोंग वन सूचर। सो लेग्यूम और फॉलिकल एक जैसे, मोनोकार्पुलरी यूनिलोक्युलर।
सिलिक्वा, सिलिक्वा में आ जाओ। दिस डेवलप्स फ्रॉम बाइकार्पुलरी, अगर होगा तो सिनकार्पस कंडीशन नहीं होगा। अगर एपोकार्पस हो गया तो वो तो सेकंड कैटेगरी में चला जाएगा, एग्रीगेट में चला जाएगा। सो बाइकार्पुलरी सिनकार्पस। और कैसे डेवलप करेगा वो बाइकार्पुलरी सिनकार्पस? एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ डेहिसेंस? देखो इनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे स्प्लिट ओपन एट मैच्योरिटी। सिलिक्वा में एक खास बात होती है, ovary is one chambered in the beginning, ovary is one chambered in the beginning, लेकिन बाद में उसमें एक फॉल्स सेप्टम आ जाता है, एक फॉल्स पार्टीशन आ जाता है रेप्लम। और जो सीड्स हैं वो रेप्लम के दोनों साइड्स होते हैं, ठीक है। तो बेस से ऊपर तक, नीचे से ऊपर ऐसे, नीचे से ऊपर डेहिस होते हैं लाइक दिस फ्रॉम बेस अपवर्ड्स। तो ये दोनों तरफ से, ये एक तरफ से, लेकिन दे आर मोनोकार्पुलरी यूनिलॉक्युलर, ये बायकार्पुलरी सिनकार्पस है। और नीचे से ऊपर डेहिस होता है, इसमें फॉल्स सेप्टम है रेप्लम। एग्जाम्पल इज मस्टर्ड। सिलिक्युला, सिलिक्युला एक शॉर्ट एंड ब्रॉड सिलिक्वा है। एग्जाम्पल बस कर लो, कैंडिडफ्ट एमारा। लास्ट वाला इज कैप्सूल। कैप्सूल डेवलप्स फ्रॉम सिनकार्पस मल्टीकार्पुलरी ओवरी। तो आपको देखना है ये और ये रिजेंबल करता है, ये दोनों रिजेंबल करते हैं। कैप्सूल मल्टीकार्पुलरी ओवरी, मल्टीकार्पुलरी होगा तो सिनकार्पस ही होगा ना। अगर एपोकार्पस हो गया तो दैट इज गोइंग टू बिकम एन एग्रीगेट फ्रूट। और ये कैसे डेहिस होता है? अलग अलग तरीके हैं, कभी पोर्स के मदद से हो सकता है, कभी लोक्यूल्स के साइड से हो सकता है, कभी सेप्टा के साइड से हो सकता है। अलग अलग तरीके हैं इसके। कभी ट्रांसवर्स लिड के साइड से हो सकता है। What you have to remember is कि सिनकार्पस मल्टीकार्पुलरी ओवरी होती है and there are different modes of dehiscence. लोक्यूल की तरफ से स्प्लिट हो जाएगा, या सेप्टा की तरफ से स्प्लिट हो जाएगा, या पोर क्रिएट हो जाएगा, उसके थ्रू सीड्स निकल जाएंगे। दैट इज कैप्सूल। ये नहीं याद रखना है आपको। एग्जाम्पल क्या होगा कैप्सूल का? पैपेवर, ये सब देखो कैप्सुलर फ्रूट्स है। ओकरा, भिंडी, धतुरा, गॉसिपियम, पॉपी, ये सब एग्जाम्पल है कैप्सुलर फ्रूट्स के। नहीं नहीं, डोंट लर्न द एग्जांपल्स ऑफ कैप्स, मतलब लर्न द एग्जांपल्स ऑफ कैप्सूल बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। चलो एक बार फिर कर लेते हैं। सिंपल फ्रूट्स डिवाइडेड इनटू, simple fruits are divided into two categories, dry and fleshy. When the pericarp is dry, when the pericarp is fleshy. When the pericarp is dry, again on the basis of dehiscence. तो ये सारे हो गए dehiscent fruits, ठीक है, और उनके मोड ऑफ डेहिसेंस के बेसिस पे है। नेक्स्ट इज शिजोकार्पिक। शिजोकार्पिक में क्या होता है ना कि डेहिसेंस होता है पर सीड पूरी तरह से अलग नहीं होता है, वो ना कंपार्टमेंट्स में होता है, लॉक्यूल्स में हो जाता है। जैसे आपने टैमरिंड को देखा होगा, मतलब डेहिसेंस जब हुआ तो सीड फ्री नहीं होती है, इट इज स्टिल लॉक्ड इन चेम्बर्स। आप समझ रहे हो, स्टिल लॉक्ड इन चेम्बर्स। जैसे आपने टैमरिंड को नहीं देखा, टैमरिंड की सीड बाहर नहीं होती है, टैमरिंड को तोड़ो उसका चेम्बर अलग हो जाता है। इसमें भी पेरिकार्प ड्राई होती है बिकॉज इट इज अ ड्राई फ्रूट। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिजोकार्पिक फ्रूट्स? मतलब स्प्लिटिंग फ्रूट्स।
ठीक है। सो जब आप इसको अलग करते हो, लोमेंटम सबसे पहला है लोमेंटम। इसमें पेरिकार्प फ्रूट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड बिटवीन द सीड्स। आपने देखा होगा ना, इमली का नहीं देखा है कि कैसे ऐसे 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 करके रहता है, इसके अंदर सीड रहता है, इसको तोड़ो सीड अलग नहीं होगा, ये कंपार्टमेंट ही अलग हो जाएगा। देखो, ये देखो, दैट इज लोमेंटम। नेक्स्ट इज क्रेमोकार्प। ये डेवलप करता है बाइकार्पलरी इंफीरियर ओवरी से। एग्जांपल इज कोरिएंडर। कोरिएंडर को ध्यान से देखना, जब आप कोरिएंडर यानी धनिया की सीड्स को अलग करोगे ना, सीड बाहर नहीं आती, दो कंपार्टमेंट में टूट जाता है, दैट इज क्रेमोकार्प। नेक्स्ट इज समारा। समारा में क्या होता है, विंग आ जाते हैं, विंग फ्रूट्स इसमें होते हैं। ये बाइकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, ये बाइकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से आता है, एंड दे हैव गॉट विंग्स ऑन पेरिकार्प। ये देखो, पहला वाला तो टैमरिंड है, लोमेंटम। उसके बाद दिस इज योर क्रेमोकार्प, धनिया। एक बस इमेजिन करना कि दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। एंड दिस इज डबल समारा, मतलब समारा का कलेक्शन। देखो विंग्स होते हैं इसमें, पेरिकार्प में विंग्स होते हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, विंग्ड पेरिकार्प। ये आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज रेगमा या कैरसेरुलिस करो। ये बाई और मल्टी कार्पलरी सुपीरियर ओवरी, लेकिन सिन कार्पस होगा, इट कैन नॉट बी एपोकार्पस। और ये मल्टीपल दिस ब्रेक्स इनटू, जब भी मेच्योरिटी, जैसे ये दो में ब्रेक होता है, ये एक एक में ब्रेक होता है ना, नॉट द सीड, उसके कंपार्टमेंट के साथ। इसमें दो कंपार्टमेंट दिखेंगे आपको क्रेमोकार्प में, इसमें विंग दिखेगा, इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में बहुत पीसेस में टूट जाएगा, जैसे ओसिमम, तुलसी, साल्विया। लास्ट वाला है रेगमा। ये ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस। देखो लोमेंटम का क्या होगा, मल्टी कार्पलरी क्रेमोकार्प, और इसका होगा बाइकार्पलरी, बाइकार्पलरी कैसरस का होगा मल्टी कार्पलरी, एंड रेगमा इज गोइंग टू बी ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस। So it breaks into three pieces. Breaks into three. हर एक लॉक्यूल में तीन रहेंगे ना. So this is trilocular also. Develops from a tricarpellary syncarpus, trilocular and superior ovary. It splits into three one-seeded cocci. Example is Ricinus, castor. देखो सिंपली आपको क्या याद रखना है शिजोकार्पिक में, शिजोकार्पिक में क्या याद रखना है आपको, ठीक है. शिजोकार्पिक में क्या याद रखना है, कि जो स्प्लिट होता है वो स्प्लिट करने के बाद वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, मतलब सीड पूरी फ्री नहीं होती है, सीड पूरी फ्री नहीं होती है. जैसे इसमें देखो लोमेंटम, इस तरीके के कॉन्स्ट्रिक्शंस आते हैं, इसमें दो में, इसमें एक में ब्रेक होगा, इसमें दो में ब्रेक होगा, इसमें विंग्ड होगा, इसमें मेनी पीसेस, और इसमें थ्री पार्ट्स में. अंडरस्टूड. एग्जाम्पल जरूर लर्न कर लेना. एंड लास्ट वाला जो ड्राई का है वो इनडेहिसेंट.
मतलब ये अपने आप से नहीं होते हैं डेहिस, ये अपने आप से डेहिसेंस शो नहीं नहीं करते हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप्स जो है वो है एकीन्स। एकीन्स में याद रखना पेरिकार्प इज नॉट फ्यूज्ड विद द सीड कोट। कैरियोप्सिस में याद रखना जितने ग्रेन्स है पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विद द सीड कोट। ठीक है, ये दोनों यूनिलॉक्यूलर यूनिलॉक्यूलर होता है। और बाइलॉक्यूलर में देखना बाइकार्पुलरी सिनकार्पस में देखो, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये इसके जैसा है, तो ये दोनों दे विल बी यूनिलॉक्यूलर एंड मोनो आई मीन मोनोकार्पुलरी यूनिलॉक्यूलर। अब ये बाइकार्पुलरी सिनकार्पस है, इसमें भी फ्रूट वॉल एंड सीड कोट आर सेपरेट। एग्जांपल इज सनफ्लावर। यहाँ पे मिराबिलिस होगा, एकीन में मिराबिलिस, कैरियोप्सिस में ग्रेन्स, सिप्सेला में सनफ्लावर। दिस इज आल्सो बाइकार्पुलरी ओवरी। देखो इसमें और इसमें खास डिफरेंस नहीं है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। नट, नट जो है, नट में पेरिकार्प इज हार्ड, इट डेवलप्स फ्रॉम सुपीरियर ओवरी। यहाँ पे कैशनट, वॉलनट्स, लीची है, लीची का देखा है पेरिकार्प कितना हार्ड होता है, लेकिन वो सुपारी उपारी के कैटेगरी के जो है वो इधर नहीं आएंगे। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट। आपको इसमें याद रखना है, इसमें सीड कोट और पेरिकार्प फ्यूज्ड है, सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज्ड है, इसमें फ्यूज नहीं है। इसमें नट जैसा अपीयरेंस है, नट यानी इट इज अ ड्राई फ्रूट। Nut means it is a dry fruit, one-seeded fruit developing from a bicarpellary syncarpous ovary, unilocular ovary. कभी कभी इसका लेदरी हो जाएगा बाहर का पेरिकार्प, कभी थोड़ा स्टोनी हो जाएगा, जैसे लीची इसमें है। लीची का एग्जांपल पूछते हैं। लीची इज एक्चुअली अ नट। लीची नट में लिखते नहीं है, लेकिन लीची इज एन एग्जांपल ऑफ नट। लीची का व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची? उसका फ्लेशी एरिल। एस्टिमेशन एक बार देख लेना, नहीं तो प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन आया था। 2 questions will come from this chapter. Okay, so this is your dry fruit. Fleshy fruit में तो आपको पता ही है, fleshy fruit is very easy. देखो ये सब fleshy fruits के examples हैं। Berry, fleshy fruit में क्या होता है? Pericarp becomes fleshy. Fleshy fruit में क्या होता है? Pericarp becomes fleshy और juicy at maturity. सबसे पहले इसमें कर लो ड्रूप। ड्रूप यानी कि कौन सा पार्ट? पेरिकार्प का कौन सा पार्ट फ्लेशी हो रहा है? मीजोकार्प। एंडोकार्प हार्ड एंड स्टोनी। एग्जांपल इज कोकोनट एंड मैंगो। ठीक है, तो इसमें एक ही सीड होता है। ओम अगर करो तो मल्टी कार्पुलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी है। इसका एडिबल पार्ट होता है फ्लेशी थैलेमस, और ये जो पार्ट होता है ना, दैट इज एक्चुअली द सीड। ये जो ऐसे एक्सपैंडेड है, ये तो थैलेमस है, ये सीड नहीं है, ये थैलेमस है, ये फ्रूट नहीं है एक्चुअली। दिस इज नॉट ओवरी, ये है ओवरी एंड ओव्यूल। तो इसमें फ्लेशी क्या हो गया? इसमें थैलेमस बिकम्स फ्लेशी, तो इसको फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी में लिया जाता है, पोम्स। बेरी में आ जाओ, इसमें बायकार्पुलरी, बेरी डेवलप्स फ्रॉम बायकार्पुलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। बेरी में एक इंपॉर्टेंट बात होती है, बहुत सारे सीड्स होते हैं। जैसे टोमेटो इज अ बेरी, ग्रेप्स आर बेरी, बनाना इज अ बेरी। ठीक है, तो इसमें फ्लेशी क्या होता है? इसका पेरिकार्प कलर्ड होता है, इसका पेरिकार्प कलर्ड होता है।
ठीक है, इसका पेरिकार्प कलर्ड होता है और फ्लैशी होता है, मल्टीपल सीड है इसमें। सो दिस इज, अच्छा हेस्पेरिडियम एक कैटेगरी है जिसमें सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, हेस्पेरिडियम। एक बार देख लेना, सारे सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो हेस्पेरिडियम में है। सो सिंपल फ्रूट्स divided into dry fruit and fleshy fruit is done। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीगेट फ्रूट। आपको पता है मल्टी कार्पलरी, पर कौन सा कंडीशन है, एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस कंडीशन है, उसमें आपको बस याद रखना है, एकीन्स हमने पढ़ा है, कलेक्शन ऑफ एकीन होगा इटैरियो ऑफ एकीन, इटैरियो ऑफ ड्रूप, ड्रूप्स का कलेक्शन, फॉलिकल्स का कलेक्शन, बेरीज का कलेक्शन, समारा का कलेक्शन, सबके कलेक्शन अगर वो एपोकार्पस फॉर्म में रहेगा देन इट इज एग्रीगेट। एग्रीगेट के एग्जांपल्स, इटैरियो ऑफ एकीन्स के एग्जांपल्स लिख लो। फर्स्ट, इटैरियो ऑफ एकीन्स, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी आपको दिखता है ना, छोटे 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 सब ऐसे आपस में फ्यूज हो जाते हैं फ्रूट्स, वो छोटे छोटे दिखते हैं, दैट इज एक्चुअली थैलेमस। एग्रीगेट ऑफ एकीन्स है वो, क्लस्टर्ड टुगेदर ऑन अ कॉमन थैलेमस आता है, उस पे चिपक जाते हैं आके वो। इटैरियो ऑफ ड्रूप्स, इटैरियो ऑफ फॉलिकल्स का एग्जांपल लिखो, कैलोट्रोपिस, इटैरियो ऑफ बेरीज का एग्जांपल लिखो, राइट द एग्जांपल ऑफ इटैरियो ऑफ बेरीज, custard apple, ananas, Enona squamosa, इटैरियो ऑफ ड्रूप्स, raspberry, इटैरियो ऑफ समारा इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। इटैरियो ऑफ बेरी में कस्टर्ड एप्पल है, सो इटैरियो ऑफ एकीन स्ट्रॉबेरी, इटैरियो ऑफ ड्रूप्स रास्पबेरी, इटैरियो ऑफ फॉलिकल कैलोट्रोपिस, इटैरियो ऑफ बेरीज कस्टर्ड एप्पल। तो ये हो गया एग्रीगेट फ्रूट। कॉम्पोजिट, देखो ऐसा क्वेश्चन कहता है कि आई मीन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, एक बार पढ़ के चले जाना। कॉम्पोजिट में वो पूरे इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है, वो दो होते हैं, सोरोसिस एंड साइकोनस। बस ये याद रखना, ये स्पाइक पूरे इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है, जैसे जैक फ्रूट या कैटकिन से डेवलप हुआ तो। एंड इफ इट डेवलप्स फ्रॉम I mean, if it develops from Hypanthodium inflorescence, then it is Syconus. जैसे fig, example is fig, अंजीर, अंजीर को ड्राई फ्रूट के नाम से बेचते हैं, पर अंजीर is a Syconus. So with this we have completed the fruits. Yes, होगी. So morphology is over. In next class we are going to do ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के लिए 2 लेक्चर्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वी विल डू इन ट्रांसपोर्ट। इसमें आप एक बार पढ़ लेना, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। एस्टिमेशन एक बार देख लेना, बट आपने एक बार जस्ट अ सेकेंड, वी विल डू एस्टिमेशन। ये उतने डिटेल में नहीं पढ़ना, बिकॉज रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी है ना वो डिस्पर्जन एंड ऑल दैट। देखो, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, arrangement of sepals or petals is known as estivation. Arrangement of sepals or petals is known as estivation. Just a second. Estivation of sepals or petals is known as estivation. अब इसमें twisted में देखो, twisted में एक दूसरे को overlap कर रहा है,
मतलब सबसे पहला वाला बी इज ट्विस्टेड ना, तो ये एक पेटल है या सेपल है, ये बाहर है ये अंदर है, ये बाहर है ये अंदर है, सो वन इनसाइड वन आउटसाइड, वन इनसाइड वन आउटसाइड। देखो एक एक पार्ट इसका बाहर एक पार्ट अंदर है, इसका भी एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर है, सो लाइक ऑल्टरनेट अंदर बाहर ऐसे, तो दिस इज ट्विस्टेड। एग्जाम्पल चाइना रोज। इम्ब्रिकेट, एक पूरी तरह से बाहर है, वन पेटल एक्सटर्नल वन, तो 5 पेटल्स में से एक पूरा एक्सटर्नल एक पूरा इंटरनल और बाकी तीनों ऑल्टरनेट, जैसे कैसिया में। लुक एट इम्ब्रिकेट, सी ये पूरा इंटरनल है ये पूरा एक्सटर्नल है और बाकी के एक अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, राइट। ओके, एस्टिमेशन कर लो। ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट हो गया, so इम्ब्रिकेट में वन कंप्लीटली इनसाइड वन कंप्लीटली आउटसाइड एंड द रेस्ट 3 आर ऑल्टरनेट। वेक्सिलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैपिलोनेसियस पी फैमिली में होता है। वेक्सिलरी में देखो एक सबसे बड़ा पोस्टीरियर पेटल ओवरलैपिंग 2 लैटरल पेटल्स, और ये एक एंटीरियर फ्यूज पेटल, उसको कील बोलते हैं, इसको विंग्स बोलते हैं, इसको कील बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड सबसे बड़ा वाला स्टैंडर्ड पेटल, ये जो लैटरल है overlapping lateral petals, they are called wings, and this is your anterior petals which is keel। ये पी बीन फैमिली में, पैपिलोनेसी फैमिली में। वैल्वेट आता है इसमें, वैल्वेट, the margins just touch each other, do not overlap। Look at this, they're just touching, not overlapping। So valvate में they are touching, not overlapping, इसमें they are like one is inside one is outside, alternate fashion। Imbricate में one completely inside one completely outside and 3 are overlapping, and इसमें there are 5 petals, one is very big, 2 are lateral wings and one is जो fused है, that is the keel। Quincennial में 2 external 2 internal और लास्ट वाला ओवरलैपिंग है। इसमें देखो ये इंटरनल है ये इंटरनल है, दिस इज एक्सटर्नल और ये ओवरलैपिंग। अंडरस्टूड? एग्जांपल इज मस्टर्ड एंड क्वालोट्रोपिस फॉर वैल्वेट, दुरंता फॉर क्विंसिनियल। वेक्सिलरी में तो आपको पता है ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये पैपिलोनेसी फैमिली बी पी बीन फैमिली का। इम्ब्रिकेट में कैसिया, and इसमें you have China rose। So with this we have completed it. So see you next class. Get all your doubts of morphology in the next class. We are going to start, yes, we are going to start the next chapter, transport। Okay, thank you so much for joining.